السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا۔ اس وقت مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ شخص کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس شخص کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں ان مشکل حالات میں۔ آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر پاکستان کی جو ایلائز جنہوں نے ووٹ دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، پاکستان میں ان کی اکثریت ہے اور وہ پاکستان کی اکثریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہی طاقت ہوتی ہے وزیر اعظم کی کہ اس کو پاکستان کی عوام کی اکثریت حاصل ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 2013 کا رویہ، وہ ذہنیت کہ پاکستان جس وقت بھی سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہو، معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہو، وہ ذہنیت ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اس کا یہ پروجیکٹ جاری رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی جب ملک میں سیاسی استحکام آ رہا تھا، معاشی استحکام آ رہا تھا، یہ 2013 والے سڑک کے اوپر ڈی چوک میں اپنی قبریں کھود رہے تھے، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا رہے تھے، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی۔ اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے تو انہوں نے ڈی چوک کو بند کر دیا اور سی پیک کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جب ملک پہ مسلط ہوئے آر ٹی ایس کو بٹھا کر آج دھاندلی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں۔ آر ٹی ایس کو 2018 میں بٹھا کر نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ملک پر مسلط ہو کر سی پیک روکا، ملک کی ترقی روکی، ملک کو مہنگا ترین کیا، ملک کے اندر نالائکی، نااہلی، چور بازاری کا بازار گرم کیا، کرپشن کا بازار گرم کیا۔ میں نہیں کہہ رہی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے۔ اور آج پھر یہ جو 9 مئی والے ہیں یہ پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں۔ پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ بار سے کیا تھا، پی ٹی وی پر حملہ بار سے کیا تھا، آج پارلیمان کے اندر آ کر پارلیمان پر حملہ آور ہے۔ اور جو ہنگامہ، جو بدتمیزی، احتجاج کا طریقہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں پارلیمان کا احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، گالم گلوچ، گندی گفتگو، بد تہذیبی، بد تمیزی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ تکلیف آج بھی یہ ہے کہ کہیں ملک ترقی نہ کر جائے، کہیں سی پیک دوبارہ نہ چل جائے، شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، کہیں مہنگائی کم نہ ہو جائے کیونکہ مسلم لیگ نون آ گئی ہے، کہیں ملک کے حالات بہتر نہ ہو جائیں، کہیں نوجوان کو جو بے روزگاری میں پچھلے 7 سال میں بے روزگار ہے ان کو روزگار نہ مل جائے، کہیں آئی ٹی کا انقلاب نہ آ جائے، ایگریکلچر کا انقلاب نہ آ جائے، ملک میں تعلیم اور صحت کا انقلاب نہ آ جائے، کیونکہ یہ 4.5 سال اس ملک کو صرف لوٹ کر گئے ہیں۔ لیکن میں ایک بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، یہ جتنی بدتمیزی کر لیں، جتنی ہنگامہ آرائی کر لیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کیا کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں، کہہ رہے تھے کاش یہ شور جو ہے وہ شعور میں بدل جائے۔ انہوں نے کہا مساک معیشت کے ساتھ میں مساک مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس گالم گلوچ کے باوجود جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو پوری کی پوری اپوزیشن سزائے موت کی چکیوں میں تھی۔ ہم نے تو کوئی ملک دشمنی نہیں کی، ہم نے تو شہداء کے مجسمے زمینوں پر پھینک کے ٹھڈے نہیں مارے، ہم تو ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے۔ یہ جو 9 مئی والی ذہنیت ہے، اصل میں یہ ذہنیت ملک کی ترقی کو روکتی ہے۔ اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے آج کی تقریر کو پورا کیا ہے، اس ہنگامہ آرائی، اس شور شرابے کے باوجود انشاءاللہ اسی طرح پورے کا پورا ٹینیور جو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس ٹینیور کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح یہ 2013 والے نہ بدلے ہیں اور نہ بدلنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں یہ شکلیں نہیں ہیں، یہ ذہنیت ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس ملک کے نوجوان کو بدتمیز، بد تہذیبی سکھائی ہے، انکلکیٹ کی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کر کے یہ یوں ہی شور کریں گے، یہ اسی طرح گالم گلوچ کریں گے، کیونکہ یہ ذہنیت ہے جو مسلط ہے اس وقت۔
तमाशा, धांधली धांधली धांधली। ओ भाई, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? पंजाब के अंदर जिस जगह हारे हैं वहां धांधली, जिस जगह जीते हैं वहां शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब की बड़ी शफाफ हुई इलेक्शन हुआ है, और उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हो गई है। तो क्या तुम लोगों ने 400 सीटें जीतनी थी? पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीतनी थी। तमाशा लगाया हुआ है। और अगर धांधली को आपका कोई किसी किस्म की तकलीफ है, याद है वो 2013 में 4 हलके खोल दें, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब फिर वही तमाशा। अगर आपको कोई शायबा है, कोई शिकायत है, इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहां से वो जो इलेक्शन कमीशन है वहां के जो लोग हैं वो पूछते हैं एविडेंस तो कहते हैं टीवी से एविडेंस ले लें, टीवी से फॉर्म 45 ले लें। तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की है, पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट किया है, आज जिस हौसले के साथ, जो आईटी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, खारजा पॉलिसी के अंदर, मईशत के अंदर जो अपना विजन दिया है, जो नौजवान के लिए अपना विजन दिया है, उस सब को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को वापस 2018 में जहां तरक्की का सफर छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह चीखते रहेंगे और ये इसी तरह पीटते रहेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में। आज मुझे किसी ने पूछा कि वो खड़े थे आज ऑपोजिशन वाले, तो क्या कहेंगी? मैंने कहा इनकी किस्मत में सिर्फ खड़े होना रहना है। इनको अगर अवाम ने भेजा है पार्लियामान में, इनकी किस्मत में पार्लियामान में बैठना नहीं है। ये इसी तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी जहनियत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। अच्छा, ये तबसरा करें जी जी जी, बात करें। अब मैं आपकी बात तो नहीं काट सकती। जी जी ना हुकूमत चलने देंगे, जी। ना हाउस को चलने देंगे, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैंने, आप ज़रा देर से आए साले जाफ़र साहब, मैंने पहले ये बात बोली है कि ये जब देखते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम आ रहा है, कोई मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, कोई सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क की पार्लियामान दोबारा वजूद में आई है, इन्होंने अपनी हंगामा आराई करनी है, क्योंकि ये 9 मई की ज़हनियत है। इन्होंने ना मुल्क की तरक्की पे इकट्ठे बैठना है, ना मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठना है, ना आवाम की हालत को बेहतर करने के लिए इकट्ठे बैठना है, क्योंकि ये इंतशार पसंद लोग हैं, ये फितना लोग हैं। बार बार शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं आओ बैठो, इस मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठो, मुल्क की तरक्की को करने के लिए इकट्ठे बैठो। ये तमाशे लगाया हुआ है इन्होंने, फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, ये करते रहें। हमारा रिजॉल्व, आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े कैटेगोरिकली, जो उनका कॉन्डक्ट रहा है पार्लियामान के अंदर भी, वो गालम गलोच, ये गालियाँ, नारेबाजी करते रहे, वो अपोजिशन लीडर के पास गई। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे, हमने मिलकर इस पंजाब की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, आप मेरे साथ डालें। आज वफाक में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए बैठे इकट्ठे तरक्की करें, इकट्ठे मुल्क की खिदमत करें। ये नहीं करना चाहते। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर इसी किस्म का इंतशार फैलाना है, ताकि हर वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत रहे। पहले बहाना था, मुझे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पता नहीं किसने निकाला, अमेरिका ने निकाला, फिर बाजवा साहब ने निकाला, फिर वो शहबाज शरीफ ने निकाला, नवाज, फिर मोहसिन नकवी ने निकाला। अब वो धांधली हो गई। भाई धांधली हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई ना, धांधली हो गई तो पंजाब में जिन सीटों पे जीते हो वहां धांधली हो गई ना। मतलब ये तमाशा लगाकर एक बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए 9 मई का, एक बहाना चाहिए मुल्क को रोकने का, बहाना चाहिए कि मुल्क की तरक्की रुक जाए, जो ये रोकना चाहते थे और जिन्होंने 4.5 साल रोकी। मैडम, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो क्या ये इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और किस तरह इन पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना करेगी? एक तरफ मायशत की हालात काफी खराब है, दहशतगर्दी है, दीगर मसाइल है, तो कैसे आप समझते हैं कि 5 साल पूरे करेगी कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये पहले भी 16 माह में इकट्ठी रही है और कोई ऐसा वाकया या किसी किस्म का ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ
जहाँ किसी तरह का शायबा भी जाए कि कोई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहता है। एक रिजॉल्व था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है उन 16 माह में, और नालायकों, नाअहलों और घुसपैठियों को पार्लियामान से उठाकर, हुकूमत से उठाकर बाहर फेंकना है। इस वक्त भी तमाम एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है। मुल्क एक क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है। मुल्क को वापस तरक्की चाहिए, नौजवान को रोज़गार चाहिए, मंसूबे चाहिए। मुल्क के अंदर दोबारा से जो 2018 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, मुल्क में एनर्जी आ रही थी, बिजली बन रही थी, मुल्क सस्ता था। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त महंगाई का है। तो एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि सब लोग शहबाज शरीफ साहब की मदद करेंगे और उनको कामयाब करेंगे, क्योंकि अगर वो कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह मुल्क में महंगाई भी कम होगी, मुल्क तरक्की भी करेगा, दोबारा से नौजवान को रोज़गार भी मिलेगा और मुल्क खुशहाल भी होगा। ज़रा सनाउल्लाह साहब कर लें फिर आप। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उन्होंने हालत भी काफ़ी दिन हो गया कैबिनेट कब तक बनेगी, और जिस तरह आप खुद कह रही है फाइनेंशियल क्रंच है, तो उसका साइज़ क्या होगा। और फेडरल की कैबिनेट कल पीएम ने क्योंकि हालत उठाना है, कल ही फेडरल कैबिनेट हालत उठाएगी और उसका साइज़ क्या होगा। देखिए, ये तो फैसला अभी होना है, मुझे मशावरत हो रही है। साइज़ क्या होगा वो तो ज़ाहिर है उसका तयन वज़ीर आज़म साहब करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैबिनेट होगी उसका। इसी तरह पंजाब के अंदर भी मशावरत जारी है। और आपको एक बहुत ही अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट गवर्नेंस का मॉडल मिलेगा, जिसके अंदर जो स्मार्ट गवर्नेंस के तकाज़े हैं, ट्रांसपेरेंसी के, और मैं इस पे पंजाब में जाकर भी प्रेस टॉक करूँगी। हर शोबे में नालायकी, नाअहली की ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं कि जिसको उठाओ, जिस महकमे को उठाओ, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ नज़र आती है। जहाँ पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो तरक्की का मेयार छोड़ कर गए थे, जो रफ्तार छोड़ कर गए थे, उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसकी तबाही लगाई गई, हर शोबा तबाह किया गया। इसलिए उसके मुताबिक हम अपनी कैबिनेट भी बनाएंगे और हुकूमत को गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, उसके जो पेस है दोबारा से आवाम की खिदमत की, आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने की, उसी को दोबारा से शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल में 1-2 दिन में पंजाब की कैबिनेट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और वफाक की कैबिनेट की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। मुझे बताइएगा, कल केपीके में जो एक खातून एमपी थी, उनका जो हशर किया गया, जिस तरह से उनके हरासा किया गया, बकौल उनकी उनके ऊपर चर्च भी फेंकी गई और मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें थी शाउट भी किया गया। और ये पार्लियामेंट ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अपने गुंडों को बिठाकर गैलरीज के अंदर ये हरकतें कराई गई और पार्लियामान के अंदर भी जो लोग वहाँ बिठाए गए हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आपको सऊदी अरेबिया का वाक़या याद होगा जो मेरे साथ हुआ, आपको लंदन का वाक़या याद होगा जो मेरे साथ हुआ था। ये जहनीत है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहते थे कि ख़वातीन ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसकी वजह से हरासमेंट होती है। ये वही ज़हनीत है, और ये ज़हनीत ही जो है उसकी निशानी और उसकी अक्कासी आपने खैबर पख्तूनख्वा में उस हरासमेंट की शक्ल में देखी। इनको ना ये पता चलता है वो कि ये मस्जिद नबवी है, इनको ना ये पता चलता है कि ये बैरून मुल्क है, कि वहाँ आप अपनी मुल्क की बेइज्जती कर रहे हैं, इनको ना पता चलता है कि पार्लियामान के अंदर किस तरह का कॉन्डक्ट होता है। ये उठा के, अब मैं ऐसी बात तो नहीं करना चाहती कि इनको किसी किस्म का कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ डिसेंसी है ही नहीं, और ये इनका रवैया हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आगाह कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। JUI के अरकान वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा न बने और कौमी असम्बली हॉल के दरवाजे बंद होने से कबल JUI के अरकान हॉल से बाहर चले गए, जबकि सरदार अख्तर मेंगल ईवान में बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया।
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म और 16वें कायदे ईवान मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ ने 201 वोट लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 votes. नताइज का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से जाकर गले मिले। कबल अज़ीं अजलास में शिरकत के लिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ हमजा शहबाज और दीगर अरकान कौमी असम्बली ईवान में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ईवान में आमद पर लीगी अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए और डेस्क पर जाकर इस्तकबाल किया। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठाया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। मैं जाम कमाल खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से कि मैं खुलूस नीयत पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की बड़ी तादाद भी ईवान में मौजूद थी। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का भी ऐलान। अपने पहले खिताब में कहा, पहली मरतबा मिसाक मईशत की बात की थी, आज मिसाक मुफाहमत की दावत देता हूँ। आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान की किस्मत संवारें। पाकिस्तान की तकदीर बनाने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करने के अज़्म का इज़हार किया। टैक्स अदा करने वालों को हीरो करार दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 votes. शहबाज शरीफ के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली से पहला खिताब। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का ऐलान। बोले, टैक्स चोरी कौम की जिंदगी और मौत का मसला है, मईशत की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मिसाक मईशत की दावत भी दे दी। अगर हम मिल के फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। नवाज शरीफ को जिलावतनी पर मजबूर किया गया, बेनज़ीर को शहीद किया गया, लेकिन हमने मिलकर पाकिस्तान की बात की। उन्होंने कभी किसी वक्त किसी लम्हे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचने की कभी सोचा तक नहीं। इसी तरीके से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक इंतहाई दिलगुदाज दिल था उनका कि पाकिस्तान खपे। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, खत लिखना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के लिए रास्ता पैदा करना है। मुदाखलत की दावत देने से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक से दरीना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी, अगयार के पास जाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्लियामान पर एतबार नहीं। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। बड़ा टैक्स अदा करने वालों को कौम का हीरो बनाना चाहिए। नई हुकूमत नौजवानों और खवातीन को रोजगार देगी, मुल्क में तरक्की का जाल बिछाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि फलस्तीन, गजा और कश्मीर में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। कोई इदारा जुल्म और सितम, कत्ल गारत रोक नहीं सका। ये पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत और मकाम अफसोस है।
اصل طاقت عوام کی طاقت ہے. ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت مضبوط ہو. ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے. سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا ملک میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی. حکومتی بینچز میں بیٹھے لوگ ہارے ہوئے ہیں. عمر ایوب نے تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرنے اور 9 مئی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. ہمارے لوگ نامینیشن پیپرز لینے کے لیے جا رہے تھے, ان کو وہاں پہ ریسٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے پیپرز, نامینیشن پیپرز, ہمارے پروپوزرز, ان کو ریسٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا تھا. ہمارے نامینیشن پیپرز جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پھاڑا گیا تھا. جناب اسپیکر, یہ تو الیکشن نہ ہوا, یہ تو سلیکشن ہو گیا. پھر 60-70 ارب روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک ملک دو دستور نہیں چل سکتے جناب اسپیکر, نہ منظور ہے ہمیں. نومنتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریب حلف برداری کل 3 بجے ہوگی. حلف برداری تقریب ایوان صدر میں ہوگی. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اون شرازی سے. جی اون بتائیے گا. جی بالکل, قومی اسمبلی کے قائد ایوان کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہوا اور شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے. شہباز شریف کو اس ایوان سے 201 ووٹ ملے, جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کو جو ہے وہ 92 ووٹ ملے, اور اس طرح شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے بلایا گیا تھا, جس میں یہ الیکشن ہونا تھا, لیکن اجلاس 1 گھنٹہ کی تاخیر کے بعد 12 بجے شروع ہوا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یعنی اس کی جو حمایت سے جیت کے امیدوار آئے ہیں اور قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں. یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی. اسپیکر ان کو روکتے رہے, لیکن انہوں نے نعرے لگاتے رہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اجلاس جب آگے بڑھا تو اسپیکر نے جو ہے وہ شکریہ اون. شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر ہمسایہ ممالک میں مبارکباد دے دی. چین کے صدر اور وزیر اعظم جبکہ ایران کے وزیر خارجہ اور سفیر نے نو منتخب وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. چین کا کہنا ہے کہ مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا. شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر متوالوں کی خوشی تیتنی. ملکی اور غیر ملکی سربراہان کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ بھی جاری. چینی صدر اور چینی وزیر اعظم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان مزید زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. تمام شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا. چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا. ایران نے بھی شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے بیان میں کہا کہ باہمی تعلقات میں اضافے کے عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران نئی منتخب حکومت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میاں شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم انتخاب ان کی قیادت پر پاکستانی عوام اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قوم کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور مؤثر حکمت عملی اپنا کر ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے. سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان شاہ نے شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم منتخب ہونے پر پارلیمنٹ میں مٹھائی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا. نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کیا ہے. دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس صبح 10 بجے منعقد ہوگا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے دونوں ایوانوں کے ارکان کو اجلاس میں طلب کیا. صدر مملکت کا انتخاب جمعیت علماء اسلام کس کو ووٹ دے گی؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں خواہش ہے کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں. جنہیں پتا تھا میں ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنوں گا، انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے. محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا. اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے. اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں،
लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है, तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। इलेक्शन जीतना उतना मुश्किल नहीं जितना इस जीत को कामयाबी में बदलना। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिलीवर करना मुश्किल है, महंगाई समेत पानी बिजली के मसाइल हल करना होंगे। इसे अगर मंजूर कराते हैं 2/3 अक्सरियत के लिए राह हमवार करते हैं MKM के साथ मिलकर, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि हर सियासी जमात के पास जाएंगे और उन्हें कायल करेंगे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, लोगों को अपनी तकदीर का मालिक बनाया जाए, हर तरह की ग़ुलामी मोहताजी से उन्हें निजात दिलाई जाए, बुनियादी मसाइल जो महंगाई बेरोज़गारी के हैं उनके ख़ात्मे के लिए गैस का कोई मुतबादिल तवानाई का और इसी तरीके से पानी बिजली के मसाइल हल करने के लिए, तालीम सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर बनाने के लिए जब तक आवाम की दहलीज तक आप इख्तियारात देंगे, वसाइल देंगे, तो ये मुमकिन होगा कि ये मसाइल जो हैं वो हल हों। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों के लिए असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारीजू के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह कहते हैं दोनों नशिस्तें बासानी जीत लेंगे। सिंध में बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार है, तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सिंध असम्बली करेगी, मुस्लिम लीग नून नहीं। कराची से शाहिद एजाज की रिपोर्ट देखिए। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के नामजद उम्मीदवार असलम ओबलो और जाम सैफुल्लाह धारेजो और वज़ीर आला सिंध और अरकान सिंध असम्बली के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। रिटायरिंग ऑफिसर सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह ने कागजात वसूल किए। वकार मेहंदी और आजिज धामरा ने बतौर गवर्निंग उम्मीदवार कागजात जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध असम्बली में 117 अरकान हैं, सेनेट की दोनों नशिस्तें जीत लेंगे। इन्होंने धांधली के इल्जामात पर GDA को आड़े हाथों लिया। इलेक्शंस के 2-4 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद पीर साहब वगैरह बड़े मोहतरम है, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे उम्मीदवार असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए, नोटिफाई करा दिया अपने आप को। पीर साहब की बात भी नहीं मानते अब तो वो, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है। बल्दियाती तरमीम पर मुत्तहदा नून लीग के मुआहदे पर बोले सिंध में मजबूत बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। हमारे सबसे बड़े शहर कराची में मुर्तज़ा वहाब मेयर हैं, बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। हैदराबाद में काशिफ शोरो मेयर है। इस तरीके से हर जगह पे पीपल्स पार्टी के में, कुछ जगहों पे मुखालिफिन के भी टाउन के या म्यूनसिपैलिटी टाउन्स के में खाली चेयरमैन कुछ हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा सिंध में बिलावल भुट्टो की 10 नकाती मंशूर पर काम करेंगे, गरीबों पर महंगाई का बोझ कम करेंगे। हर बरादरी के बाद वज़ीर आज़म मईशत संभालेंगे। हम वज़ीर आज़म को वादे याद दिलाएंगे। कैमरामैन शरोज खान के साथ शाहिद एजाज, सच न्यूज़ कराची। ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले के हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से एक सेमिनार जामिया इमाम खुमैनी माड़े इंडस मियां वाली में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने की। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ज़हूर इमाम महदी से पहले के हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से एक सेमिनार जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियां वाली में मुनक़िद हुआ। सेमिनार की सदारत साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने की। सेमिनार में मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग का काम सर अंजाम देने वाले मुबल्लिगीन ने शिरकत की। सेमिनार की पहली नशिस्त में मौलाना नवाब हैदर आबदी, कारी इनामुल हक, मौलाना सैयद नईमुल हसन नकवी, मौलाना आबिद हुसैन शुजाई, डॉक्टर तसव्वुर हुसैन, मौलाना कमर अली मोहम्मदी और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने इमाम महदी के ज़हूर और उनसे पहले के हालात पर खिताबात किए। दूसरी नशिस्त में मौलाना नकी इमरान जाफरी, मौलाना नूर हाशिम, डॉक्टर हसनैन नादिर, मौलाना सईद इंतसार मादी नकवी, सीनियर नायब सदर शिया उलमा कौंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी, डायरेक्टर एम्स कॉलेज प्रोफेसर इम्तियाज़ अली रिजवी, मौलाना सैयद हसनैन अब्बास गर्देजी ने खिताबात किए। सीनियर नायब सदर शिया उलमा पाकिस्तान अल्लामा आरिफ हुसैन वादी का कहना था कि इमाम महदी ही उम्मत के इत्तेहाद का मरकज़ हैं, वो आएंगे तो तमाम मसालिक मुत्तहिद हो जाएंगे। नुक्ता असल ये है कि महवर वहदत उम्मत का जो इत्तेहाद है वो जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुद पाक मुस्तफ़ा थे, आखिरी दौर में वो दौर आएगा कि महवर वहदत हज़रत साहिबुल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ होंगे। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामिया इमाम खुमैनी की तारीख, मकसद और गुज़िश्ता 42 सालों की काविशों के बारे में मुख्तसर आगाह किया। इनका कहना था कि हम सबको इमाम महदी की आमद के लिए तैयारी और इनके मिशन के लिए काम करना चाहिए। 40 साल पहले को देखो और आपको देखो, और यकानन आनन फानन कितनी तब्दीलियां आई हैं और यकदम ये तब्दीलियां आती जाएंगी।
ये मुअश्शिरात हैं, उनके अल्फाज थे, ये मुअश्शिरात है कि अय्याम ज़ुहूर करीब है, लेकिन हम यकीन से नहीं थे। उन्होंने कहा सही है, ये बात नहीं है कि ज़ुहूर आज होगा या 100 साल बाद होगा, मुझे क्या करना है, बस मुझे क्या करना है। अगर ये हमें समझ हो जाए ना कि मुझे क्या करना है, तो बस सारे मसाइल हल हैं। आखिर में प्रोग्राम में शरीक होने वाले मुबल्लिगीन को ज़ियारात का टिकट देने के लिए कुरअंदाजी की गई। मुबल्लिगीन को अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपनी तसानीफ दी। कैमरामैन आशा के साथ जायद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कराची में बैठकर इस्लामाबाद को निशाने पर रखा। सरबराह जमात उलमा इस्लाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। बलूचिस्तान और सिंध असम्बली खरीदी गई, ओहदों की बंदरबांट की गई। सियासतदान जमहूरी सोचों का सहारा लें, किसी आमर का नहीं। मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट साख खो रही है। इंतखाबात में आने वाले कौम दिल से तस्लीम नहीं करती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत फूलों की सेज नहीं है, मुआशी चैलेंजेस समेत बहुत से मसाइल का सामना है। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज झाकरानी ने कहा है कि जहां जीतें सही, हारने पर धांधली का वावेला करते हैं। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीटीआई हमेशा से धांधली का बयानिया बनाती रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। अमीरुल हक बोले, हम पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। एमक्यूएम अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील का एक और मरहला मुकम्मल। जमहूरी रवायात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अवाम नई हुकूमत से कई तवक्कुआत लगाकर बैठे हैं। इस्लामाबाद से सूफी यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। ऐवान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तवक्कुआत लगा ली। लोग कहते हैं आने वाला वज़ीर आज़म महंगाई को कम, लॉ एंड ऑर्डर, मईशत, मुल्क के इस्तेहकाम को बेहतर बनाए। चाहते हैं हम इस मुल्क में कोई तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, मुल्क में अमन अमान हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो। आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। जो आपके सामने हालात है, मजदूर अपनी मजदूरी के ऊपर ही है अभी तक। आवाम को चाहिए करंट की महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, जॉब जो हैं तो उसके मौके यूथ के लिए जो हैं तो वो करें। बहुत ज़्यादा काम का बंदा है और इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए मुल्क की खिदमत करेगा। और इस दफ़ा कुछ बढ़ चढ़ के खिदमत की जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान जो बहुत पीछे चला गया है। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई और गैर मुस्तहकम हालात से गुजर रहा है। मुल्की हालात को देखते हुए इस सूरत हाल में बेहतरीन और मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और सनलाइटिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खैबर के इलाके ज़खा खेल में बोसीदा कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। वाकया अलग सुबह पेश आया। लाशों को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। पीडीएम में रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में जारी बारिशों, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 37 अफराद जख्मी भी हुए। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से इन इलाकों का राबता दीगर से मुनक़ता हो गया। मुसलसल बर्फबारी काम में रुकावट और सुस्तरवी की वजह बन रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर ने मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया करने, जबकि जाँ बहक अफराद के वरसा और जख्मियों को फौरी तौर पर इमदादी चेक मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा है कि बंद रास्तों को खोलने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अवाम को बर वक्त रिलीफ पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएं। पीडीएमए के मुताबिक मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। पीडीएम में तमाम अजला के साथ करीबी राब्ते में है। मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पीडीएम ने तमाम अजला की जिले इंतजामिया को पेशगी इक़दामात के लिए 25 फरवरी को मरासला जारी किया था।
पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शाहराह कराकरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद मुसाफरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 2 और 3 मार्च को जिला दियामिर में 36 घंटे तक मुसलसल बारिश होने की वजह से शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बाद शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। इस मौके पर GB स्काउट्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुजफ्फराबाद के इलाके पटहक्का में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन, लिफ्ट में फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गांव मनगना में दरिया अबूर करने वाली लिफ्ट का रस्सा टूट गया। 2 गांवों को आपस में मिलाने वाली केबल का रस्सा टूटने से उसमें बैठे मुसाफिर फंस गए। केबल कार का रस्सा टूटने से केबल कार की सर्विसेज मुअत्तल हुई। इस मौके पर पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की रिवायत को कायम रखा। पाक फौज और रेस्क्यू टीम के अमले ने बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए केबल कार में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। कराची वीमेन टेक क्वेस्ट के ज़ेरे तमाम 8वां पाकिस्तान प्रीमियर टेक मुकाबला बराए ख़वातीन का इनेकाद किया गया। मुकाबले में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से 1200 से ज़ायद ख़वातीन ने हिस्सा लिया। शाहिद इजाज़ की रिपोर्ट देखिए। कराची नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में 8वां ख़वातीन के लिए पाकिस्तान का प्रीमियर टेक मुकाबले का इनेकाद हुआ। CEO कैटलेस लैब जहां आरा का कहना था 50% ख़वातीन हैं और अगर हम चाहते हैं इस मुल्क की मैशियत बढ़े, हमें बहुत सी ख़वातीन को टेक सेक्टर में लाना पड़ेगा। इस मुल्क में 50% औरतें हैं और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी ग्रो हो तो हमें बहुत सी औरतों को टेक सेक्टर में लाना पड़ेगा। इसलिए कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपको आधा वक्त अपना घर पे गुजारना है, चाहे वो माँ बाप की देखभाल करनी हो, चाहे वो बच्चों की या अपने घर की ख्याल रखना हो, तो वो आप कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ज़िशान आफ्ताब का कहना था, हमारा मकसद ये है कि हम ख़वातीन को मौका फराहम करते रहें। हमारा जो इनिशिएटिव है वुमेन इन टेक का, इसके अंदर हम करते ये हैं कि हम ख़वातीन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आएँ और मिल के जो है साथ एक कम्पीट करें लाइक माइंडेड लोगों के साथ, देखें कि काम कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव इसमें हार या जीत नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग आएँ और नेटवर्क करें और देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कहाँ से पढ़ के कहाँ काम करके लोग आ रहे हैं। एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग बिनिश फिरदौस का कहना था, ये इवेंट न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल स्केल पे हमने विमेन टेक क्वेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1200 से ज़ायद ख़वातीन आई और उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। वुमेन टेक क्विज टेम्पल यूनिवर्सिटी का एक इक़दाम है जो ख़वातीन के लिए मुकाबला करने, सीखने और तकनीकी सलाहियतों का ज़ाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कैमरामैन शरीफ खान के साथ शाहिद इजाज़, सच न्यूज़, कराची।